Good morning everyone. Welcome to Gyan Jyoti online classes. Today we discuss about chapter 16, that is light. This chapter belongs to your class 8 science. So student, we have already learned a lot of things regarding this chapter. Today we discuss about the defects of vision. Okay. So during the various causes we suffer various eye disease. Okay, so as a result we feel problem in see such a thing that which are at objects which are nearer to me, at some time the object which is far away from us we cannot able to see. Okay, so on the basis of their characteristics we divide the defects, we classify the defects of vision and to mainly 3 or 4 categories, just like your myopia, hypermetropia, then your presbyopia and cataract. Okay, in this week we are going to learn about these 4 types of defects of eye. Okay, so let's first learn about your myopia. Okay, what is myopia? Another name of myopia is short sightedness. Okay, short sightedness, that means focus on this term. Short sightedness means it signifies a term that is short, means the person, there are such persons who are able to get a clear view of the object which are nearer to them. Okay, so like if this is a person, okay, if the object is placed near the eye, okay, that is nearer to eye, then it is able to clearly view this picture of this object. Okay, suppose if this object will move far away from this eye, okay, if this object will move far away from this eye, then this person is unable to capture a pure view or the actual view of this object. What happened in this case? The light beam which are coming from the object, okay, suppose these are the light beams which are coming from an object which is placed at a large distance. So what happened? This is your this what happened? The light enters the eye, okay, and it will pass through the iris and it enters the lens, and what will be happen? This is at this portion the object will be, the image will be formed, but in this what will be happen? The image will be occurred at here behind the eye. So the person is unable to get a real image or the exact image of the object. Okay, so in this case, what is the reason behind it? Mostly this is occurred due to the decrease of the focal length of the eye lens. Otherwise, elongation of the eyeball, that is increase in the length of the eyeball. Okay, this is my 2 causes occur. One thing, this is your eye lens. If this eye lens is unable to perform the task, okay, if the focal length of this eye lens will be decreased, then it is unable to form the image at here. So decrease in focal length means it will be, the focal length will be here, so the image will be formed behind the eye. Okay, another thing is that if elongation of eyeball, that is increasing the length of eyeball, okay, if the eyeball will be increased, the length of the eyeball will be increased, then the lens having continuous, that if this is retina, then continuously be unable to form the image on the retina. Okay, so this is the 2 causes that is the result of the myopia or short sightedness. Okay, तो क्या होता है अगर ये मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस जो होता है डिजीज, इनमें 2 चीज, एक चीज क्या होता है कि अगर कोई चीज पास है तो सही तरीके से दिखाई देगा, अगर कोई चीज दूर चला गया तो सही तरीके से दिखाई नहीं देगा. ठीक है, इसका जो एक दूर ऑब्जेक्ट है उससे लाइट आ रहा है तो कॉर्निया से एंटर करेगा, फिर पुपिल के साथ एंटर करेगा, और लेंस के साथ जो भी इसका इमेज फॉर्मेशन होने वाला था वो क्या होगा, आपका रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा, कहीं बीच में इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा. अगर कोई चीज रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा तो उसका जो कोन और रॉड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ऑप्टिकल ग्लास उसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, तो ये इमेज हमको नहीं दिखाई देगा. ठीक है, ये जो वजह है ये क्यों होता है, क्योंकि इसका 2 काज है. एक तो अगर इसका फोकल लेंथ कहीं डिक्रीज हो गया, जो आई लेंस है, आई
जाता है तभी इसका जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन पाएगा, तो आंखों के बीच में ही बन जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर ये आएगा, इसका जो नॉर्मल डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर का होता है, ये 2.3 सेंटीमीटर से कहीं बड़ा हो गया, 2.4 या 2.5 हो गया, तो तभी ये इमेज रेटिना पे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तभी ये इस तरह का डिजीज जो है हो जाएगा कि आपको कौन सा डिजीज, मायोपिया हो जाएगा। इसको किस तरह से हम करेक्ट कर सकते हैं, अगर मान लो कि जो कोई उसी प्रकार का इमेज है, ठीक है, अगर उस तरह का इमेज है तो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सामने एक कॉन्केव लेंस लेना है। ठीक है, उसके सामने आप एक कॉन्केव लेंस रखेंगे, तो जो भी लाइट आएगा कोई भी दूर के ऑब्जेक्ट से, वो इजीली सेंट्रलाइज होकर क्या होगा, आपका जो है रेटिना पे इसका इमेज फॉर्म। ठीक है, तो इमेज बन जाएगा रेटिना। अगर आपको किसी को शॉर्ट साइटनेस है या किसी को मायोपिया है, उसको करेक्ट करने के लिए डॉक्टर लोग क्या सजेस्ट करते हैं, एक कॉन्केव लेंस सजेस्ट करते हैं। कॉन्केव लेंस वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुइटेबल फोकल लेंथ। उसी के इसका आई जितना फोकल लेंथ जितना रिड्यूस होगा और इसका आई जितना इंक्रीज हो गया होगा, उसी के हिसाब से ये जो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ को एडजस्ट करके ये लोग यूज करते हैं। ओके, ओके, तो अब एक दूसरी टाइप के डिजीज के बारे में देखते हैं। इस पे क्या होता था कि कोई पास की चीज सही तरीके से दिखता था और दूर का चीज सही तरीके से नहीं दिखता था। ठीक है, और कुछ लोगों का जो आंखों में ऐसा क्या होता है कि जिनको नजदीक की चीज सही तरीके से दिखता है, नजदीक की चीज सही, दूर का चीज सही तरीके से दिखता है, और जो उनके पास है वो उनको सही तरीके से नहीं दिखता या धुंधला दिखता है। ठीक है, इस तरह का डिजीज को हम क्या कहेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इस तरह डिजीज कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इसको कहते हैं क्या, लॉन्ग साइटेड। नाम से देखना, अगर वो शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब उसको शॉर्ट चीज है, शॉर्ट डिस्टेंस है, पास की चीज सही तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब इस आदमी को जो दूर की चीज है, वो लॉन्ग डिस्टेंस की चीज है, वो उसको सही तरीके से दिखेगा। उस जो डिजीज का नाम से उसका आप सिम्टम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये शॉर्ट साइट से लॉन्ग साइटेडनेस और जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वो क्यों होता है, उसके लिए भी दो वजह हो सकते हैं। पहला क्या है, इंक्रीज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आईलेंस। अगर यहाँ पे डिक्रीज होता है तो बीच में फॉर्मेशन हो जाए, अगर इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ये रेटिना के बाद ही फॉर्मेशन होगा, ये रेटिना के फॉर्म नहीं, क्या होगा, रेटिना के बाद में, रेटिना के पीछे इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और क्या होगा, इसका जो क्या होगा, आई बल का साइज इंक्रीज हो गया, इसमें क्या होगा, आई बल का साइज अगर डिक्रीज हो जाएगा तभी क्या होगा, इसका इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, अगर इसमें दो, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इसका एकदम से नजदीक खड़ा है, ठीक है, तो नजदीक खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट इस तरह से लाइट बीम आएगा। ठीक है, इस तरह जब इसका इमेज आएगा तो क्या होगा, ये जो रेटिना के बाद ही फॉर्मेशन, यहाँ पे जो इमेज था यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, इसमें क्या होगा, ये अगर ये आपका रेटिना है, रेटिना के पीछे इसका इमेज फॉर्मेशन, तो ये भी इस कंडीशन पे भी जो आदमी है वो इस चीज को, कोई भी नजदीक वाला चीज को सही तरीके से नहीं देख पाएगा। तो इसको करेक्शन करने के, इसको करेक्ट करने के लिए, उस आदमी को पास की चीज को सही तरीके से दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो आई है, उसके आई के सामने हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस
उसके आई के सामने एक कन्वेक्स सुटेबल लेंस रखा गया, सुटेबल फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स लेंस रख दिया गया, तो क्या करेगा उस आई को, उसका जो इमेज बनेगा वो एकदम रेटिना पे ही बनेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका रेटिना है, उसका इमेज सही तरीके से रेटिना पे ही फॉर्मेशन, तो क्या होगा यहाँ पे कौन सा लेंस हमने यूज किया, कॉन्वेक्स। तो ये दो तरीके की डिजीज है। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस जो होता है उसमें पास की चीज सही तरीके से दिखता है लेकिन दूर का चीज नहीं दिखता। उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस का, सुटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। ये क्यों होता है, एक तो अगर आई एंगल का साइज बढ़ जाएगा, ये जो आई एंगल है इसका साइज अगर बढ़ जाएगा तभी उसका जो इमेज है वो आंखों के बीच में फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इस जो लेंस लगा होता है, जो आई लेंस है, उसका अगर फोकल लेंथ कम हो जाएगा तब भी ये डिजीज हो सकता है। फिर जब बात करते हैं दूसरी तरह की डिजीज, हाइपरमेट्रोपिया और लंग साइटेडनेस। लंग साइटेडनेस मतलब क्या है, इसको दूर की चीज सही तरीके से दिखाई देगा और नजदीक की चीज जो वगैरह है वो सही तरीके से नहीं दिखाई। ठीक है, इसका रीजन क्या हो सकता है, अगर आई बल का साइज छोटा हो जाए, किसी वजह से जो आई बल है वो थोड़ा छोटा हो जाए, तो तब भी ये रेटिना के बाद में फॉर्मेशन होगा। अगर इस लेंस का फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तब भी क्या होगा, ये रेटिना के बाद ही इमेज फॉर्मेशन होगा, तभी हमको दिखने में दिक्कत होगा। इसको करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम कोई ऐसा चश्मा पहने, कोई ऐसा ग्लास लगाए जो कि कन्वेक्स लेंस से बना हुआ हो। ठीक है, तभी हम तो सारे चीज सही तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, अब दूसरी तरह का चीज क्या होता है, एक डिजीज होता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, प्रेस बायोपिया क्या होता है, व्हेन द आई लेंस कैन नॉट फोकस क्लियरली ऑन आइदर नियर बाय और फार ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल, द पर्सन इज सेड टू बी सफर फ्रॉम प्रेस बायोपिया। और तीसरी तरह का डिजीज क्या होता है, यहाँ पर अगर ये आई लेंस ये जो इस मसल के साथ कनेक्ट होता है उसे कहते हैं सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का अगर मान लीजिए आपका आई लेंस, सिलियरी मसल का काम क्या होता है, मेरा हाथ अगर सिलियरी मसल इस तरह से जब कनेक्ट होगा, इसको अगर दूर की ऑब्जेक्ट है तो पास में फॉर्मेशन करना है, इसको खींच लेते हैं। ठीक है, और कहीं इसको प्रेस कर देते हैं। इसी के हिसाब से जो लेंस का फोकल लेंथ वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। इसको हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। तो जो अगर ये सिलियरी मसल किसी कारण से वीक हो गया, ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, तो ये लेंस का जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ठीक है, तो तब क्या होगा, ना ही उस आदमी को नजदीक का इमेज सही तरीके से दिखेगा, ना ही दूर का इमेज, दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो सही तरीके से दिखेगा। उनको ये दोनों का चीज, उसको मायोपिया का भी सिम्टम है और हाइपरमेट्रोपिया का भी सिम्टम है। तो इन दोनों डिजीज का जो सिम्टम जिस डिजीज में होगा उसको कहेंगे हम प्रेस बायोपिया। ठीक है, उसको कहेंगे हम प्रेस बायोपिया। जो प्रेस बायोपिया होता है इसमें इन दोनों तरह का मिक्सचर होता है। तो मान लीजिए आपका हाइपरमेट्रोपिया है और आपका क्या है, ये जो मायोपिया, इसका थोड़ा दोनों का मिला जुला सा है। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है, जो डिजीज जो कि नजदीक की चीज सही तरीके से नहीं दिखा। मायोपिया का मतलब क्या है, जो चीज दूर का चीज सही तरीके से नहीं दिखा होगा। तो प्रेस बायोपिया में दोनों पास, नजदीक का और दूर का, दोनों का ऑब्जेक्ट ही सही तरीके से नहीं दिखता। तो इसको करेक्शन करने क्या करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाते थे, कॉन्वेक्स लेंस लगाते थे, और मायोपिया का करेक्शन करने के लिए कौन सा लेंस लगाते थे, हम यूज करते थे कॉनकेव लेंस लगाते थे। तो जो प्रेस बायोपिया का डिजीज है उसको करेक्शन करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, कि जो लेंस लगाएंगे कि जो वो लेंस इन दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो उस टाइप का लेंस को क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस। इसको कहते हैं बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल लेंस का जो बाईफोकल लेंस के जो उसका जो चश्मा बनेगा वो क्या होगा, उसका जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में क्या होगा, आपका एक कन्वेक्स लेंस रहेगा और जो अपर पार्ट, सपोज ये ठीक है,
तो यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है, यहाँ पे अगर इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो लोअर जो पोर्शन है वहाँ पे क्या होगा आपका एक कन्वेक्स लेंस है, और जो अपर पार्ट है उसमें क्या लगेगा एक कनकेव लेंस लगेगा। इसी तरह में ओके स्टूडेंट, नाउ डिस्कस अबाउट अनदर टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दैट इज cataract. Okay, mostly those people who has crossed the age limit of 40, okay, so in their eye there is a foggy layer which is deposited on the topmost layer, so the person is unable to get a clear view of anything. Okay, so in old age eyesight become foggy and eye lens loses its transparency due to formation of a membrane over it. This membrane blocks the passage of light entering the eye lens. This defect of vision is called cataract. The defect is corrected by replacing opaque lens by a new artificial. तो ये जो डिजीज बनता है, जो कि अगर वो किसी आदमी 40 एज का जो 40 एज उसको क्रॉस कर लेता है तो उसका जो लेंस के सामने एक ओपेक्स है, फॉगी टाइप एक लेयर बन जाता है, तो उस लेयर बन जाने से लाइट को सही तो आई को सही अमाउंट से लाइट नहीं आ पाता है, तभी क्या होता है कोई भी चीज़ का सही तरीके से आदमी देख नहीं पाए, एकदम धुंधला धुंधला सा लगता है। तो इसको करेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, जो इसका एक ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में जो इसका सामने जो लेयर जमा हुआ होता है उसको हटा दिया जाता है, और कभी कभार आर्टिफिशियल यहाँ पे लेंस का इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, ये था आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन। नाउ डिस्कस अबाउट द compound eye of animals. हमने ह्यूमंस के बारे में सब कुछ पढ़ा, अब क्या पढ़ते हैं कुछ डिफरेंट एनिमल्स के आई किस तरीके के होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं पहले जबकि आप जो डॉग और कैट के बारे में, ठीक है, certain animals such as dog and cat have a reflective layers of tissue behind the retina. This reflective layer of tissue reflect visible light back through the retina, helping the animals is to better view in the low light condition. Dog and cat cannot see color; they only see very few shades of color. क्या होता है जब हम बात करते हैं डॉग और जो कैट्स वगैरह की, उनका जो आई होता है तो मालूम है उनका कुछ आई का कंडीशन है इस तरह का, तो उनके सामने का जो यहाँ पे अगर आप रेटिना होता है तो रेटिना के पीछे क्या होता है एक रिफ्लेक्टिव लेयर लगा होता है, जो भी लाइट आएगा जो इमेज फॉर्मेशन होने से पहले क्या होगा फिर से रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, तो जो अमाउंट ऑफ लाइट होगा वो बढ़ जाएगा। इसी के कारण क्या होता है वो बहुत कम लाइट पे, डिम लाइट पे भी किसी चीज़ को सही तरीके से देख सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या होता है कि कोई एग्जैक्ट कलर नहीं देख पाते, इनको सब कुछ सैड सैड फेड फेड नजर आता है। कैट और डक एकदम से सही तरीके से किसी भी तरह का इमेज नहीं देख पाते। ठीक है, अगर आप बात करते हैं दूसरे एनिमल की, जस्ट लाइक द ऑल कैन सी वेरी वेल एट नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे सिंस इट हैज़ ए लार्ज कॉर्निया एंड पीपल टू अलाउ मोर लाइट in its eye. Also, the owl's retina has a large numbers of rod and only few numbers of cones, which helps the bird see better at night. On the other hand, ठीक है, तो जो ऑल की बात करते हैं, ऑल की जब बात करते हैं, ऑल क्या होता है, ये जो आई है उसका आई का जो ये कॉर्निया होता है एकदम बड़ा होता है, उसका पिपिल भी एकदम से बहुत बड़ा होता है। आप देखे होंगे ऑल का आई है, उसका जो आई पर उसका जो पिपिल होता है वो भी बहुत बड़ा होता है, ताकि बड़ा होने के कारण बहुत सारा लाइट इसके अंदर एंटर कर पाता है। ठीक है, ये बहुत सारा एंटर करने के बाद क्या होता है ये डीम लाइट और नाइट पे सही तरीके का विजन ले पाता है। लेकिन इसके आई में क्या होता है मैक्सिमम क्या होता है उसमें रॉड्स होते हैं और फ्यू जो होता है वो कोन। तो हमने आप पढ़ा है कि रॉड्स का काम क्या होता है, ये काम करता है डीम लाइट। ठीक है, ये डीम लाइट पे करता है, ये क्या करता है
ब्राइट लाइट में काम करता है जो आपका कॉन्स। तो जो ऑल के केस में कौन बहुत कम होता है और डे के टाइम अगर ज़्यादातर लाइट उसके आई में एंटर करे तो डे के टाइम पे वो सही तरीके से नहीं देख पाता है। इसीलिए और दिन में बहुत कम निकलता है, लेकिन उसके रात में क्या होता है, वो उसका जो पिपिल है बहुत बड़ा है तो ज़्यादा अमाउंट का लाइट उसके आई में एंटर करेगा और उसमें मैक्सिमम रॉड्स है। रॉड्स जो है डीप लाइट में बहुत पावरफुल है, तो उसके आई कंस्ट्रक्शन ही ऐसा है कि वो रात में ही सही तरीके से दिख पाएगा और डे टाइम में सही तरीके से नहीं दिख पाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अलग तरीके के बर्ड्स जस्ट लाइक सच एज काइट्स एंड ईगल कैन एज वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट एट नाइट। ओके, बर्ड्स दैट एक्टिव ड्यूरिंग द डे हैव मोर कोन्स एंड फ्यू रॉड्स। इसका रिवर्स होगा, अगर जितने भी बर्ड्स जो है वो नाइट टाइम में एक्टिव रहते हैं तो उनका आई में क्या होता है, रॉड की मात्रा ज़्यादा होता है और कोन की मात्रा कम होता है। लेकिन ऐसे कुछ बर्ड्स हैं जैसे लाइक जो काइट एंड ईगल, ये सब क्या होते हैं, दिन में बहुत इफेक्टिव होते हैं, रात में बहुत कम इफेक्टिव होते हैं। तो इसमें जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इनमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ कोन रहता है, तो कोन की मात्रा ज़्यादा रहता है और जो रॉड की मात्रा बहुत कम रहता है, ताकि वो लोग दिन में सही तरीके से कोई चीज़ को देख पाते हैं और रात में सही तरीके से इस चीज़ को नहीं देख पाते। ठीक है, ये हो गया कुछ बर्ड्स के बारे में। अगर बात करें क्या है, मोस्ट इंसेक्ट हैव कंपाउंड आई मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ टीनी लेंस प्लेस्ड टुगेदर इन ए हनीकॉम्ब पैटर्न। ये क्या होता है, इन सारे जीवों में बस एक ही लेंस रहता है, पर ऐसा कुछ जीव है जिनका जो आय बनता है उस आय में क्या होता है, नंबर सब लेंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लेंस होते हैं। ये लेंस किस तरह से, हनीकॉम्ब जिस तरह से होता है ना, उसी तरीके से फिट होती है। एक आय में थाउजेंड्स ऑफ लेंस भी हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं, अगर एक जीव के अंदर 1000 लेंस होगा तो एक जीव जो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज है 1000 इमेज बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कि क्या होता है, हर एक लेंस कुछ डिफरेंट काम करता है, जो काम होता है हर एक लेंस पर बढ़ जाता है। और एक चीज, अगर कोई चीज है, ठीक है, इस तरह कोई चीज है तो ये उसका कोई हेड पार्ट फॉर्मेशन करेगा, कोई हेड पार्ट फॉर्मेशन करेगा, कोई उसका मिडिल पार्ट, कोई लेग पोर्शन, कोई टेल पोर्शन। इस तरह से उनके बीच जो आंखों का लेंस है उनके बीच काम बढ़ जाता है और छोटे छोटे पार्ट वो लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं, फिर उनको मिला के फिर एक इमेज बनता है। ठीक है, ये होता है कुछ कंपाउंड्स आई के बारे में। तो ठीक है, ये सब हो गया आपका कंपाउंड आईज ऑफ एनिमल्स। अब बात करते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन किस तरीके से आई का इम्पोर्टेंस और आई का डिफेक्ट और विजन में इम्पोर्टेंट करता है और ब्लाइंडनेस पे उसका जो किस तरह का इफेक्ट रहता है। ठीक है, हम जब बात करते हैं विटामिन ए, जो विटामिन वगैरह होते हैं, विटामिन ए होता है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है आपका विजन। अगर आपके फूड में विटामिन ए की मात्रा कम हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, अगर आपको डे टाइम में सब कुछ सही दिखाएगा, आपका नाइट टाइम जब होगा डीम लाइट पे आप सही तरीके से देख नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, आपका जो रॉड्स वगैरह है वो कमजोर हो जाएगा। आई में जो कोन्स और रॉड्स होते हैं, रॉड्स जो है वो कमजोर हो जाएंगे, तो आप डीम लाइट पे कोई चीज़ को सही तरीके से नहीं देख पाएंगे। उस डिजीज को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये क्या होता है, आपके फूड में अगर विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है तो इस प्रकार का डिजीज होता है। तो हर दिन आपका क्या होता है, 600 मिलीग्राम का विटामिन ए लेना जरूरी है। अगर रेगुलरली आप 600 मिलीग्राम का विटामिन ए ले रहे हैं तो आपका आई का जितना भी रॉड्स और कोन्स वगैरह है वो सब हेल्दी रहेंगे और आपको ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। ठीक है, ये गया। अलग से बात क्या है कि केयर्स ऑफ आई, आई का हम केयर किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, अगर हमने विटामिन ए, सी और ई जो रिच फूड्स हैं वो हम रेगुलरली लेते हैं, ठीक है, तो हमारा आई साइट मेंटेन रहेगा और प्रिवेंट जो कैटरैक्ट होता है, जो एज डेवलपमेंट के बाद आई के ऊपर एक लेयर बन जाता है जो कैटरैक्ट डिजीज होता है, उससे भी ये बचाएगा। ठीक है, तो आपको हर दिन क्या होना है, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई रिच फूड
सबको डेली आपको जो डाइट में है उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो जो फूड लाइक देयर फॉर प्लेंटी ऑफ कैरेट्स, पपैया, ऑरेंज, फ्रूट्स एंड मिल्क शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट, ओके। तो आपके ये जो विटामिन ए, सी और ई चाहिए वो कौन से फूड में मिलेगा आपको? मैक्सिममली कैरेट, पपैया, ऑरेंज, फ्रूट्स एंड मिल्क। रेगुलरली आप ये सब चीज़ जब ले रहे हैं तो आपको विटामिन ए, सी, ई का डेफिशिएंसी नहीं रहेगा और आपका आय भी हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो फिर भी आय का केयर करने के लिए और कुछ स्टेप हमें लेना चाहिए कि जो टीवी मोबाइल वगैरह है उसको लॉन्ग टाइम हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, और जब हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ प्रोटेक्टिव आई ग्लास लगाना एकदम से ज़रूरी है। अगर प्रोटेक्टिव आई ग्लास लगाते हैं तो ये सब भी आई का जो प्रॉब्लम है वो कम होगा। फिर क्या होगा, अगर कोई चीज़ अगर किसी हम क्या कर रहे हैं जो आपका जस्ट लाइक जो जोर से आय को रब करते हैं, अगर आप जोर से आय को रब करोगे, अगर कोई डस्ट पार्टिकल होगा तब आय को हैवी इंजरी होगा। तो हमें अगर कोई चीज़ आय से रिमूव करना है तो वॉश करके रिमूव करना है, कुछ रब नहीं करना है, ठीक है। यूज ए पेयर ऑफ सनग्लास विथ अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन व्हेनेवर यू आर इन द सन। ज़्यादा सनलाइट को भी देखने से आय को इफेक्ट होगा। तो जब गर्मी धूप में जब बाहर निकलते हैं तो ब्लैक जो सन ग्लासेस होते हैं, जो यूवी प्रोटेक्शन सन ग्लासेस होते हैं वो लगाना ज़रूरी होता है। अगर हम किसी बस या ट्रेन में मूव करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करते टाइम किसी चीज़ को पढ़ना नहीं चाहिए। अगर किसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम आय का जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है बहुत तेज़ी से काम करेगा, तो आय का उसी से भी आय को पेन होगा, उस आय को दिक्कत हो सकता है। तो हम किसी चलते जब कुछ मूव कर रहे हैं तो कोई चीज़ को पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब हम किसी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई जो डिस्टिंक्ट विजन उसे फॉलो कर रहे हैं, 25 cm का एटलीस्ट डिस्टेंस रखना चाहिए और बहुत कम लाइट या बहुत तेज लाइट से पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें डिस्टिंक्ट विजन का ख्याल रखना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग फैसिलिटी का भी ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ये सब प्रोसीजर है जो कि हम फॉलो करना चाहिए हमारे आय को केयर करने के लिए। अब बात करते हैं क्या एड्स फॉर विजुअली चैलेंज। ऐसे कुछ लोग हैं जो कि या तो बचपन से अंधे हैं, उनका आय ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, या आय का उनका कुछ एक्सीडेंट वगैरह में या कुछ किसी चीज़ का साइड इफेक्ट की वजह से उनका आय क्या होगा, किसी डिजीज में होकर उनका आय का कोई भी पार्ट मान लो उसका कॉर्निया होगा, पिपिल होगा, आइरिस हो गया, आईलेस या रेटिना किसी में डैमेज आ गया तो वो सही तरीके से नहीं देख पाता है, ठीक है। तो मान लो कि आय ही हमारा सब कुछ है, आय फंक्शन नहीं करेगा तो हमारा चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा हो गया, ठीक है। तो इमेजिन कर सकते हैं उनका जो जीवन शैली होता है, उनका जो लिविंग स्टाइल होता है वो कितना पेनफुल हो सकते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है, ज़माने के डेवलपमेंट के बावजूद इनका भी जीवन शैली चेंज होने लग रहा है, ये भी जीवन के स्रोत में एंटर करने लगे। तो इनका जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं उनको दो चीज़ लगाकर इनको स्रोत में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। वन होता है क्या आपका ऑप्टिकल एड्स, दूसरा होता है क्या नॉन ऑप्टिकल एड्स, ओके। तो ऑप्टिकल एड्स क्या होते हैं, these आर प्राइमरी एड्स मेंट फॉर पर्सन विथ पार्शियल इम्पेयरमेंट ऑफ विजन। जो लोग उनको पार्शियल इम्पेयरमेंट होते हैं, कुछ दिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, उनमें ये चीज़ ऐड किया जाता है। ना ही एक आदमी का बिल्कुल आँख नहीं है तो उनको जो ऑप्टिकल एड्स हैं वो काम नहीं आएंगे। और उनके पास आँखें बस कुछ दिक्कत की वजह से वो लोग देख नहीं पा रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, उनके केस में हम ऑप्टिकल्स एड लगाएंगे। ऑप्टिकल एड्स क्या क्या होते हैं, अगर जिस तरह के कोई जो आपका कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बाईफोकल लेंस, ये सब लगाकर भी किसी का जो देखने में कमी है और देखने में दिक्कत है उसको हम दूर कर सकते हैं। किसी को कॉन्टैक्ट लेंस या फिक्स लेंस वगैरह लगा के भी हम इसको दूर कर सकते हैं। अगर फिर मैग्नीफायर, नेक्स्ट टिंटेड लेंस, टेलीस्कोप, ये सब वगैरह उनको प्रोवाइड करके हम उनके विजुअल में इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सब हो गया आपका ऑप्टिकल एड्स। फिर होता है क्या नॉन ऑप्टिकल एड्स क्या होता है, दिस इंक्लूड्स विजुअल एड्स और टेक्टाइल एड व्हिच यूज द सेंस ऑफ टच, ऑडिटरी एड्स which use the sense of hearing
and electronic ads. Visual ads are meant for magnifying printed words or providing suitable intensity of light and materials at proper distance. Tactile ads, including the Braille writer, slate, and stylus, are meant for help the visual challenged person in taking notes, reading and writing. तो ये जो नॉन ऑप्टिकल एड्स वगैरह है जिनका आई पूरी तरीके से डैमेज है, मेनली उन लोगों की सहायता के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये उनके पास आई साइट नहीं है, पर अगर क्या उनके पास प्रॉपर सेंस ऑर्गन है, प्रॉपर हियरिंग ऑर्गन है, तो उन लोगों को ऑडिटरी एड्स और सेंसेशन एड्स का मदद देकर उन लोगों को जो उनका जो एजुकेशन है, उनका जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनको हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेली राइटर होता है उनमें बहुत सारे तरह का डॉट्स वगैरह होता है। उन डॉट को ये लोग टच करके फील करके उन अल्फ़ाबेट को पहचान सकते हैं, या कुछ नंबर्स वगैरह को ये लोग पहचान सकते हैं, या फिर इनको ऑडियो टैब के माध्यम से भी हम एजुकेट या कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये सब होता है आपका नॉन ऑप्टिकल एड्स। ठीक है, so now discuss about the Braille system. The Braille system, which is belonging to a one type of non-optical ads, which will be provided to the total visually challenged person. Okay, so the Braille system was developed in 1821 for visually challenged people by Louis Braille, who himself was a visually challenged person. The present system was adopted in 1932. There is a Braille code for common language including many Indian language as well as for mathematics and scientific notation. तो जो ब्रेली सिस्टम है ये पहले क्या हुआ था 1821 में लुइस ब्रेली के द्वारा पहले ये इन्वेंट किया गया था। लुइस ब्रेली खुद ही जो एक ब्लाइंड पर्सन थे, वो खुद ब्लाइंड होने का जो दुख था वो फील कर पाए थे। वो चाहते थे कि अगर दुनिया में जो भी ब्लाइंड पर्सन आएंगे वो अपनी ब्लाइंड होने का कोई गम ना हो, वो भी सारा एजुकेशन वगैरह वो ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने राइटिंग सिस्टम का एक लेटर का इन्वेंट किया जो था ब्रेली सिस्टम। इनमें बहुत सारे डॉट्स वगैरह होते थे, उन डॉट को टच करके अगर कोई लेटर वगैरह मान लो कि कोई सपोज यहाँ पे 6 डॉट्स है इस तरह का, तो यहाँ पे जो फर्स्ट डॉट होगा वो थोड़ा ज़्यादा डीप होगा, तो इसको मान लेंगे कि हम ये लेटर ए है। इसी तरह से वो लोग टच करते करते ब्लाइंड पर्सन लोग इसी के सहारे वो सीख सकते हैं। ठीक है, ये था आपका चैप्टर नंबर 16 का एंड, और यहाँ पे हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।